Hi guys, welcome to ABC Economics. I hope you all are doing fine. Today we are going to start with our current affairs series and our first topic is macroeconomic indicators. And we are looking these macroeconomic indicators of Indian economy. तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पढ़ाने वाला हूँ विद द हेल्प ऑफ स्टैट्स गुरु कॉम्पाइलेशन। ये कॉम्पाइलेशन बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार के अंदर में आता है और ये हर मंथली आता है और बहुत ही जबरदस्त कॉम्पाइलेशन देता है डेटा का और बहुत ही उपयोगी। See students, before coming to chart number 1, I will share with you some basic information about Indian GDP. Out of 100% contribution, agriculture contributes 15% of GDP. Okay, industry contributes about 30% of GDP, and service sector constitute about 55 to 60% of GDP. Okay, so out of that industry, around 17% constitutes manufacturing. Okay, so the whole aim of ambition of Make in India was to raise this 17% to 25%. But as on date, the share of manufacturing in Indian GDP is around 16%. In fact, it has shrunk by 1% in the last 1 year. So from these facts, you might be getting a air of the things that Make in India has not yielded the desired result. That's why government in the previous budget has come with Assemble in India. Okay, so the whole aim of increasing share of Indian manufacturing is a worthy goal, but long-term policies have to be made in order to attract long-term investments. Let's start with our chart number 1. In this chart, we are given growth rates of manufacturing, services and construction sector. Okay, so if you can look this chart carefully, this chart clearly highlights a secular slowdown across these sectors. Okay, if we talk about especially manufacturing and construction sectors, things are getting worse from quarter 1 and quarter 3 of 2020. Okay, so this is a cause of great worry because these sector, I am talking about manufacturing and construction, these are बिग एम्प्लॉयर ऑफ सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स। सो अगर इस क्षेत्र में प्रॉब्लम चल रही है या फिर ये क्षेत्र श्रिंक होंगे कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग तो मास अनएम्प्लॉयमेंट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा, unemployment will increase. Okay, and this situation I am talking about is pre-COVID. Okay, so you might be aware of that our Indian GDP was going through a slowdown, and this slowdown was from the last 8 quarters. Okay, so you cannot say that this is because of COVID. Okay, this is not COVID crisis. Indian economy was already in doldrums before COVID. So moving on to our second chart. सेकेंड चार्ट में आपको एग्रीकल्चर, कृषि क्षेत्र, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट क्षेत्र और कोर जीवीए ग्रोथ दिखाई गई है। ओके, सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एग्रीकल्चर और कोर जीवीए। अगर कोर जीवीए की बात करूँ तो कोर सेक्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो देयर आर 8 कोर सेक्टर्स। कोर सेक्टर्स में कौन से सेक्टर्स आते हैं? फॉर एग्जाम्पल स्टील आ गया, सीमेंट आ गया, पेट्रोलियम आ गया। सो देयर आर 8 सेक्टर्स। आप 8 सेक्टर्स का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। So talking about gross value addition in coal sectors, you can see that GVA in quarter 1 of fiscal year 2019 was 7.2% in core sectors and now it is just 1.1%. So this line clearly indicates that there is a massive slowdown in manufacturing sector. अगर गवर्नमेंट क्षेत्र की बात करें तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग हैज बीन रिलेटिवली कांस्टेंट, ऑल्दो गवर्नमेंट ने स्लो डाउन का कॉग्निजन लिया है लास्ट 2 क्वार्टर्स में और दे आर स्पेंडिंग रिलेटिवली हायर। If we look at agriculture, we are seeing that this sector is relatively doing well in last 2 quarters because we are having
record production this year. Okay, so in case of food grains and horticulture, we are having record production this year. Okay, so अगर एम्प्लॉयमेंट की नज़र से अगर बात करें तो यही कृषि क्षेत्र ने अपन को बचाया गया हुआ है, बिकॉज इन प्रीवियस ईयर, इन द लास्ट ईयर वी वर हैविंग अ वेरी गुड मानसून. Moving on to our third chart, we are given here three engines of our GDP. These primarily are consumption expenditure. Okay, consumer spending जिसे अपन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट जिसे अपन ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग. ओके, सो अगर आप प्राइमरली इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट एक डीप नोज डाइव करता हुआ आपको -6.5 से ग्रो हुआ दिख रहा है आपको क्वार्टर 4 में, मतलब ये श्रिंक हो चुका है. तो दिस इज अ वेरी वेरी ग्लूमी सिचुएशन. ओके, तो अगर इसका एक भी इम्प्लीकेशन, ये भी इम्प्लीकेशन है कि जो गवर्नमेंट ने जो सितंबर में कॉर्पोरेट टैक्स कट्स दिए थे, तो वो काम करते हुए अभी फिलहाल दिख नहीं रहे. ओके, तो गवर्नमेंट का ये मोटो कि इससे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ, अभी फिलहाल तो ये नजर आ नहीं रहा है. मूविंग ऑन टू कंज्यूमर स्पेंडिंग, you can see that consumer spending has gradually deteriorated with the time. It has reached to 2.5% in quarter 4. So the whole bunch of people whose claim is that there is not enough demand in the market and government should intervene and try to stimulate the economy via demand measures is seems to be true. इसका मतलब ये है कि people are not buying goods and services at the pace at which they were used to buy. Okay, इसका मतलब ये है कि लोग ज़्यादा चीज़ें खरीद नहीं रहे हैं, इसलिए खरीद नहीं रहे, इसलिए क्या हो रहा है, मार्केट में जो है वो डिमांड है वो स्लम्प हो रहा है, मतलब डिमांड में कमी आ रही है. अगर मार्केट में डिमांड में कमी आ रही है मतलब कि इतना प्रोडक्शन करने की ज़रूरत नहीं है. अगर प्रोडक्शन करने की ज़रूरत नहीं है तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है. अगर प्रोडक्शन की में कमी आ रही है मतलब आपके जो एग्जिस्टिंग मशीन्स है वो ही काफ़ी है उतनी मात्रा में चीज़ों को बनाने के लिए, तो आपको नए मशीन्स, नए प्लांट्स की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, इसलिए क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कमी होगी. अगर इन्वेस्टमेंट में कमी आएगी तो जॉब्स होगा, वो क्या होगा, जॉब्स में भी कमी आएगी, न्यू जॉब्स जनरेट नहीं होने वाले. अगर जॉब जनरेट नहीं होने वाले तो क्या होगा कि इनकम्स है वो क्या होगी, ग्रेजुअली डिक्रीज होने लगेगी. अगर इनकम डिक्रीज होगी तो उसका इफेक्ट किसके ऊपर आएगा, पीपल की परचेसिंग पावर के ऊपर आएगा. ठीक है, परचेसिंग पावर के ऊपर अगर उसका इफेक्ट आएगा तो पीपल विल नॉट बाय गुड्स एंड सर्विसेज इन एडिक्वेट अमाउंट. तो ये एक क्या होता है, ये होता है विशियस साइकिल होता है. इस विशियस साइकिल को ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए, डिमांड को अपटिक करना जरूरी है. और ये डिमांड को अपटिक कैसे होगा, ये गवर्नमेंट का फिस्कल स्टिमुलस से होगा. ठीक है, तो एक मैसिव गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्रोग्राम लाने की जरूरत है इस समय. दिस इज अ सरप्राइज फॉर यू. आई हैव डिसाइडेड टू ब्रिंग न्यूज रिव्यूज along with the content whatever I am teaching. Okay, so I hope you will like this initiative. Yes or no? So पहला न्यूज रिव्यू है. एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि जो Q4 जीडीपी के फिगर्स है वो थोड़े बड़े हुए दिख रहे हैं. ऐसा क्यों है, मैं ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ. ठीक है, जो अपना एनएसओ है ये जीडीपी फिगर्स देता है हर साल. तो इस बार उन्होंने क्या किया, क्वार्टर 1 खत्म हुआ, उन्होंने जीडीपी फिगर्स दे दिए 5%. क्वार्टर 2 खत्म हुआ, उन्होंने जीडीपी फिगर्स दे दिए 4.5%. और जब क्वार्टर 3 खत्म हुआ तो उन्होंने क्या किया, क्वार्टर 3 के जीडीपी फिगर्स तो दिए ही, साथ में क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 के जीडीपी फिगर्स थे वो रिवाइज कर दिए. और रिवाइज कैसे किए, वो क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 को बढ़ा दिए. ओके, और जब अभी फिलहाल क्या हुआ कि क्वार्टर 4 के जीडीपी फिगर्स बाहर आया 3.1%. अब जब उन्होंने 3.1% क्वार्टर 4 जीडीपी फिगर दिया तब उन्होंने क्या किया कि जो पिछले 3 क्वार्टर थे उनके जीडीपी फिगर्स को वापस से रिवाइज कर दिया. वापस से रिवाइज कैसे किया, उन्होंने क्या किया, जो पिछले वाले जो एस्टिमेट्स थे, सेकेंड एस्टिमेट्स थे, वो क्या कर दिया, उन्होंने वापस से चेंज करके उनको घटा दिए.
तो एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि ये घटाना बढ़ाना ये कैसे चल रहा है। तो ये क्या कर रहा है, एक सवाल रेज कर रहा है कि ये जो इनकंसिस्टेंसी है और जो लार्ज फ्रीक्वेंसी में रिवीजन हो रहा है डेटा फिगर्स, ये थोड़ा सवाल पैदा कर रहा है। तो इट जो डेटा क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है। ओके, और ऐसा इसलिए है क्योंकि अपनी इकोनॉमी के जो जीडीपी फिगर्स है उसको देख के बहुत सारे लोग, उसको देख के बहुत सारे कॉर्पोरेट्स, उसको देख के बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट या फिर एक्सपेंडिचर वाले डिसीजंस लेते हैं। ओके, तो अगर फिगर्स ही रॉन्ग होंगे तो उनके जो डिसीजंस हैं वो ऑप्टिमल रहेंगे नहीं, वो एफिशिएंट रहेंगे नहीं, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ओके, तो ऑल्दो कि ये रिवीजन करना ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, बट जो इनकंसिस्टेंसी आती है और या फिर लार्ज डिफ्लेक्शन आ जाता है, छोटी मात्रा में चेंज हो तो चल जाता है, मगर ये आप देख रहे हैं 5% से 5.6%, मतलब 0.440 बेसिस पॉइंट का, और फिर वापस से 40 बेसिस पॉइंट का रिवीजन, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। सो लेट्स मूव ऑन अवर फोर्थ चार्ट। चार्ट नंबर 4 में आपको ये दिया हुआ है कि अभी जो फिलहाल एस्टिमेट्स है क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 के जीडीपी का, उसका कंपैरिजन आपको क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 के एस्टिमेट से दिया हुआ है, जो कि पहले वाले एस्टिमेट्स हैं। ओके, तो आप अभी देख सकते हो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 का जो डिफरेंस है अभी वाले एस्टिमेट से, वो लगभग 7% है। उसी मैनर में फाइनेंशियल सेक्टर में थोड़ा सा रिवीजन कम है, और इन्वेस्टमेंट में आप देख सकते हो ये एक मैसिव डिफरेंस है। तो 8% का डिफरेंस होना एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। ओके, चलिए चलते हैं चार्ट नंबर 5 पे। चार्ट नंबर 5 में अपन को नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का ग्राफ दिया गया है। क्या फर्क है इन दोनों में? रियल जीडीपी के ऊपर आप अगर इन्फ्लेशन जोड़ देते हो तो आपको नॉमिनल जीडीपी मिलता है। तो इस चार्ट में ये बताया गया है कि डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी के आने के बाद में इकोनॉमी थ्रू आउट द टाइम नेगेटिव टेरिटरी में जा रही है, मतलब स्लो डाउन के शिकार हो रही है। ठीक है, तो these two are called twin shocks to the economy। और ये बात तो सच ही है कि नोटबंदी और जीएसटी ने जो इनफॉर्मल इकोनॉमी थी उस पे काफी बुरा प्रभाव डाला। चलते हैं चार्ट नंबर 6 पे। चार्ट नंबर 6 पे आपको बताया गया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नेट टैक्स रेवेन्यू है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताया गया। ठीक है, तो आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक कांस्टेंट ग्रोथ से ग्रो हो रहे हैं, बट अगर आप सेंट्रल के नेट टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो 17-18 के बाद में आप देखेंगे तो ये बिल्कुल एक लाइट ट्रेजेक्ट्री से ग्रो कर रहा है। मतलब ये है कि ये जो बीच वाला गैप है रेवेन्यू और टैक्स कलेक्शन में, ये बढ़ रहा है, और ये एक बहुत ही डेंजरस साइन है। इससे क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा। ओके, तो दिस इज नॉट अ गुड साइन एंड हेल्थी साइन फॉर एनी इकोनॉमी। Financial year 18 was a defining moment because GST was implemented in this financial year. On which date? 1st of July 2017. So after GST, you can see that government has not been able to collect adequate amount of taxes. They claim that while GST is a good system, but it is not yet stable in our country. ठीक है, तो काफी हरीली गवर्नमेंट लेके आई, उनका ये मानना है। ठीक है, तो और चीजें और बेहतर हो सकती थी। अब इतना कुछ हो गया है तो रेटिंग टू डाउनग्रेड होनी ही थी। हाँ हाँ, दैट वाज गैलोज ह्यूमर फॉर यू। लेट अस मूव टू 7 चार्ट। 7 चार्ट में आपको देखने को मिल रहा है कैपेक्स, फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी राइट साइड में, और फिस्कल डेफिसिट इन रुपीज ट्रिलियन बार चार्ट में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कंसंट्रेट ऑन कैपेक्स।
आप कैपेक्स की अगर बात कर रहे हैं तो कैपेक्स जनरली बहुत ही धीरे धीरे ग्रो हुआ, ठीक है, तो इट इज़ नॉट ए गुड थिंग. Ideally, capex should grow with the GDP rate. ओके, बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि कैपेक्स बहुत ही स्मॉल ग्रोथ रेट से इंक्रीज हुआ है. दैट इज नॉट गुड फॉर ए पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री लाइक इंडिया. जब आप कैपेक्स की बात करते हो तो कैपेक्स में क्या आता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आता है वो कैपेक्स में आता है. कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स दोज एक्सपेंडिचर विच क्रिएट एसेट्स सच एज बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, हेल्थ केयर एक्सेट्रा. So these are infrastructure projects. So infrastructure projects are very important as capital expenditures creates a multiplier effect on economy. Let us move on fiscal deficit. In order to catch hold of this fiscal deficit number, you have to have some basic concept of government budgeting. So let us study about government budget. Okay, this time around government budget was of 30.7 lakh crore. Okay, so how the government finance its budget? Government generally finance its budget from non-borrowing revenues and borrowing revenues. Non-borrowings means revenues from disinvestments, income tax, corporate income tax, GST, and dividends from PSUs, etc. There may be several heads under this non-borrowing part. Okay, borrowing means you have to finance additional amount of money from markets. So you have to borrow from markets or from overseas in order to fund your budget. Okay, so this part of financing is called fiscal deficit. This is a crude way of saying this thing, although complexities are there. So at this stage, this concept is adequate. So every year's fiscal deficit adds to total public borrowing. In other words, it is called total government debt. This is a stock of debt. Okay, so every year's fiscal deficit will add to total public debt. Okay, so this time around the total debt was 10 lakh crore. Okay, although the total debt of India is around 70 to 80% of GDP. So in this fiscal year of 2021, it is estimated that it will overshoot this 80% of GDP figure. Okay, that is things clear. Now this time around fiscal deficit was 4.7% of GDP. That is what fiscal deficit means, that you have to borrow funds in order to fund your budget, in order to fund your expenditure. That expenditure may be in the form of revenue expenditure, means you have to spend the money in order to run your government day-to-day basic necessities, and the other form of expenditure may be capital expenditure that we have learned earlier. Okay, let us move forward. This is our news review number 2. So Moody's has finally decided to downgrade us. ठीक है, तो जो आपको पता है कि जो इंडिया की जो एक सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग होती है, जो कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां लाइक मूडीज, फिच, S&P वगैरह देती है, ठीक है, तो अपनी पहले वाली कैटेगरी थी Baa2 विथ स्टेबल आउटलुक, और अभी क्या कर दिया है उन्होंने, Baa3 विथ नेगेटिव आउटलुक कर दिया है. और जब उनको पूछा गया कि रीजंस क्या है, तो उन्होंने बोले ये बताया है कि जो गवर्नमेंट हैज नॉट बीन एबल टू इम्प्लीमेंट की रिफॉर्म्स इन सम की सेक्टर्स. सेकेंड रीजन उन्होंने दिया है कि जो लो इकोनॉमिक ग्रोथ अपन ने लास्ट 2 इयर्स में शो की है,
उसकी वजह से वो लोग डाउनग्रेड कर रहे हैं। थर्ड रीजन उन्होंने दिया है कि जो फाइनेंशियल पोजीशंस है गवर्नमेंट की जो बैलेंस शीट पे जो स्ट्रेस आ रहा है, सेंट्रल एज वेल एज स्टेट, जो आपको पता होगा फिस्कल डेफिसिट बहुत ही हाई हो गया है बिकॉज ऑफ लो ग्रोथ, वो दिया है। प्लस जो अपने फाइनेंशियल सेक्टर में जो स्ट्रेस है उसके कारण भी उन्होंने डाउनग्रेड किया है। जब उनसे पूछा गया कि ये फैसला डाउनग्रेड करने का ये कोविड से रिलेटेड है क्या, तो उन्होंने ये बोला कि कोविड आने से पहले ही इंडिया की जो फाइनेंशियल पोजीशन थी, जो फाइनेंशियल और ग्रोथ जो प्रोस्पेक्ट्स थे, वो काफ़ी डिटोरिएट हो रहे थे, ठीक है, काफ़ी नीचे गिर रहे थे। इसके कारण हमको ये फैसला लेना पड़ा और कोविड ने क्या किया कि ये सब चीज़ों को और वर्सन कर दिया, ठीक है। तो हमारा फैसला है ये प्री कोविड जो इतनी सिचुएशन थी उसको मद्देनजर देखते हुए ज़्यादा। दिस इज अवर न्यूज रिव्यू नंबर 3। सो कोविड आने के बाद में क्या हुआ है कि अपना एक कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे होने वाला था 2021 में, ठीक है, तो वो हो जाएगा अब डिले। अब उसका डिले होने का मतलब ये है कि अपना जो बेस ईयर है जो कि सीपीआई कैलकुलेशन के लिए यूज होता है, और अपना बेस ईयर क्या है 2011, वो अभी तक बना हुआ है और वो आगे भी बना रह सकता है। बट होता क्या चाहिए कि सीपीआई का जो रिवीजन है वो हमेशा होना चाहिए 5 साल बाद में, बिकॉज कंजम्पशन जो हैबिट होते हैं, जो पूरी लाइफस्टाइल होती है कंजम्पशन एक्सेट्रा, तो वो हर 5 साल में मतलब विद द टाइम इट टेंड्स टू चेंज। तो ये जो कंज्यूमर बिहेवियर का जो पैटर्न है, ये जो लेटेस्ट फिगर्स है उसमें ये कैप्चर होना चाहिए। हालांकि कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे ऑलरेडी किया जा चुका है 2017-18 में, बट उसमें हुआ क्या कि जो पिछली बार कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे हुआ था 4-5 साल पहले, उससे मुकाबले जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है वो गिरती हुई दिखी, ठीक है। इसलिए क्या किया गवर्नमेंट ने, क्या किया, उसको एक डस्टबिन में फेंक दिया। There is one fundamental rule of stats that the year in which you are conducting any survey should be a normal year. It should not be a year with any crisis. The crisis could be any physical or biological crisis such as COVID, or any financial crisis such as global financial crisis of housing sector in America. So ये आपको चीज क्लियर होगी, yes या no? This is our news review number 4. It is an interesting interview of our Minister of Railways and Commerce and Industry पीयूष गोयल, ठीक है। उनको पूछा गया कि इकोनॉमी का जो अपना 5 ट्रिलियन का टारगेट है वो अचीव कर पाएंगे अपन। उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल करेंगे, 2025 तो नहीं होगा बट 1-2 साल और लग सकते हैं, ठीक है। नेचुरली अपन को ये टारगेट अचीव करने में 4 या 5 साल एडिशनल और लग सकते हैं। क्या बात कर रहे हो, 4 या 5 साल और? हाँ बिल्कुल, बिकॉज दिस ईयर वी आर गोइंग टू श्रिंक बाय 10-20%। ओके, अपनी जीडीपी थी पिछले साल की, वो थी 203 लाख करोड़, ठीक है। अगर एक दिन भारत बंद रहता है तो लगभग 50,000 करोड़ से लेके 1 लाख करोड़ तक का नुकसान होता है। तो अपने यहाँ पे लॉकडाउन 2 मंथ का लेके चलते हैं, ठीक है। 2 मंथ का लॉकडाउन हुआ मतलब क्लियरली आपका 5 या 10% जीडीपी तो ऐसे ही शेव आउट हो चुका है। और जो बाकी के मंथ्स है फाइनेंशियल ईयर 21 के, आपको लगता है कि इकोनॉमी 100% इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर पाएगी? मुझे तो लगता नहीं है। अगर 60 या फिर 80% एफिशिएंसी भी मान लें तो अपना फिगर यही आता है कि 20% से श्रिंक होना, ठीक है। प्लस ये है कि अपने जो मेट्रोज है वो बहुत बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट करते हैं जीडीपीज में, फॉर एग्जांपल मुंबई और दिल्ली, बेंगलुरु एक्सेट्रा। तो ये जो मेट्रोज है वो काफ़ी दिन से शट थे, प्लस अभी मुंबई में भी बहुत हालत अभी फिलहाल भी खराब है। जब हमारे डायनेमिक मिनिस्टर को श्रमिक ट्रेनों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो खाने की कमी के कारण उसकी मृत्यु हुई है, और सारी ट्रेनें सही टाइम पे सही जगह पे पहुंची है, और जो भी लोग बोल रहे हैं कि ट्रेन डाइवर्ट हुई है वो गलत अफवाह फैला रहे हैं, ठीक है। और जब 20 लाख करोड़
पैकेज के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला कि पैकेज बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही चंगा पैकेज है और 130 करोड़ लोगों को फायदा करेगा और इंडिया को मेक इन इंडिया की मदद से बहुत ही फायदा होने वाला है और एक ग्लोबल पावर बनने की अपन राह पे चल पड़े। इसी के साथ ही हमारा सेशन समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हेल्प करें इस चैनल को आगे एक्सपेंड करने में। थैंक यू।